کیا کریں گے؟ تو میرا خیال ہے جن چیزوں کے اوپر اس وقت ان کو خیال رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اکانومی جو ہے اس کا بیڑا غرق ہوا ہے، اور اس کا اس لیے بیڑا غرق ہوا ہے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. اگر یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہی اس سے مزید نقصان ہوگا. ایک سیکنڈ بیٹا، میں بات مکمل کروں گی تو پھر پوچھوں گی آپ سے. دوسری بات یہ ہے کہ اسی ادھر ہی جو ہسپتال آپ کے ساؤتھ میں بن رہے ہیں وہ بہت تیزی سے بن رہے ہیں، جس کے اندر کارڈیک ہاسپٹل جو ہے ہمارا ڈی جی خان کا، اس کی انشاءاللہ اگلے 15 دن کے اندر ہم اس کی ایمرجنسی اور اس کا آؤٹ ڈور جو ہے اس کی افتتاح کر رہے ہیں. ڈی جی خان مین ہاسپٹل جو ہے اس کے اندر لیٹسٹ اکوپمنٹ والے تھیٹرز جن کو ہم کہتے ہیں اپنا ماڈیولر تھیٹرز، وہ سارے وہاں بن گئے ہیں، تیار ہیں، اور انشاءاللہ they'll start functioning from next week. وہاں مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل بن رہا ہے. لیا کے اندر مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل اس مارچ میں، کمنگ مارچ کے اندر 200 بیڈڈ ہسپتال جو ہے وہ تیار ہو جائے گا. اسی طریقے سے بھاول نگر کے اندر، اور آپ کو پتا ہے یہاں غلہ منڈی کے اندر آپ کا مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل بن رہا ہے. جہاں تک میاں والی کا اسپتال ہے وہ تیار ہو گیا ہے. گنگا رام ہم نے آپ کے سامنے شارٹسٹ پاسبل ٹائم، کسی حکومت نے اتنا جلدی اسپتال نہیں بنایا کہ 2020 کے اندر شروع ہو ہسپتال فروری میں، اور کووڈ کے دورانیہ میں، اور 2022 کے نومبر میں ہسپتال چلا دیا جائے. اور 550 بیڈڈ ہسپتال ہے جہاں اسٹیٹ آف آرٹ ہر قسم کا اکوپمنٹ اور جتنی ایڈوانس گائنی میں آبسٹرکس میں وہ سارا کچھ موجود ہے. تو ایک اور وہ بنایا بھی سی این ڈبلیو نے. تو پتہ جی لاہور کی میں بات کر رہی ہوں. پھر آپ کا میاں والی کا اسپتال تیار ہو گیا ہے انشاءاللہ، اگلے 15 دن میں اس کی بھی اوپننگ ہو رہی ہے، مکمل ہو گیا ہے. اسی طرح اٹک کا جو مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل ہے وہ انشاءاللہ وہ بھی ہمیں مارچ میں مل جائے گا. تو میرا خیال ہے پچھلے 5 سال کے عرصے کے اندر، اب تو 4.5 سال ہوئے، پوری 5 سال بھی نہیں ہوئے، جتنے ہسپتال، ان کی کنسٹرکشن، ان کے اوپر کام ہماری حکومت نے کیا ہے شاید اس سے پہلے کبھی کسی حکومت. اور اس کے علاوہ جڑے انہوں نے رکے ہوئے ہسپتال سن یہ بھی دس دیے کیونکہ پتر گال دے مکان دینا پتر کی ہو گیا تھا. میں ایک سیکنڈ میں کہیں نہیں جاتا جی، میں حکومت میں اگر بات مکمل کر لوں. ابھی تو میں نے بات تو کرنے دینا. فرسٹ آئی ول کمپلیٹ واٹ آئی ایم سیئنگ. پہلے بات تو مکمل کرنے دینا. آپ میں بات نہ مکمل کروں؟ کمال کرتے ہیں آپ بیچ میں. یہ تو پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ میں بات مکمل نہیں کر رہی، آپ بیچ میں کہہ رہے ہیں. میں نے جب کہا ہے کہ میں سوال سنوں گی آپ کے. جی دوسری امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ اس وقت جتنے ہسپتال اس حکومت نے بنائے اور پھر جو سہولتیں لوگوں کو اس میں دی ہیں میڈیکل سروسز میں، جس میں آپ کو بتایا ہے دل کے اس وقت 1.5 سے 1.5 لاکھ لوگوں نے اینجیوگرافی اور یہ سارا کچھ کرایا ہے. تو اس لیے انشاءاللہ جو ہمارے پاس اب تھوڑا بہت وقت ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کا سوچ رہے ہیں، تو جتنا بھی وقت ہے اس میں جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ انشاءاللہ پورے کریں گے تاکہ لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچے. ون ایٹ اے ٹائم. جی آپ نے کتنے فنڈ دیے ہیں؟ مستقل رجسٹرار نہیں ہے، یا اکیڈمک سٹاف کی کمی ہے، یا ڈاکٹر پورے نہیں ہیں، نرسز پوری نہیں ہے. آپ ہمیشہ آتی ہیں لالی پاپ دے کے چلی جاتی ہے، رشتوں کو کچھ نہیں ملتا. یہ جو آپ نے اعلان کیا آج فنڈ کے حوالے سے، یہ بھی اسمبلیاں تعریف کر دیں گے ریاست مدینہ کے دعوے دار، اور پھر رشتوں کو کچھ نہیں ملے. دیکھو میرا خیال ہے سب سے بڑی بات ہے جو 11 ارب روپے ہے یہ تو ان کا سینکشنڈ ہے، اس لیے وہ پیسہ تو کہیں بھی نہیں جا رہا. اس میں سے جو ڈیولپمنٹ کے پیسے ہیں وہ آلریڈی شفٹ ہو گئے ہیں، جن لوگوں نے کنسٹرکشن کر رہی ہیں ان کو آلریڈی دے دیے گئے ہیں. اس لیے یہ لالی پاپ نہیں ہے، یہ باقاعدہ دے دیا گیا ہے. نمبر 1. ایک منٹ میرا خیال ہے، ایک سیکنڈ میں آپ کے بات کی جواب، پہلے میں ان کی بات کے جواب دے دوں. نمبر 2 امپورٹنٹ یہ ہے کہ جہاں تک تعلق ہے کہ جی نشتر کو کچھ نہیں دیا گیا، یہ آپ کی غلط بیانی ہے. آپ کا وائس چانسلر صاحب آپ کے اپوائنٹ ہوئے، آپ کے پرنسپل کی اپوائنٹمنٹ ہم نے کی ریگولر. وائس چانسلر صاحب کو آلریڈی یہ اتھارٹی دی گئی تھی کہ آپ اپنا ایم ایس صاحب کا ریگولر لگایا گیا. اس کے بعد وائس چانسلر صاحب کو اتھارٹی دی گئی کہ آپ اپنا رجسٹرار رکھیے. آج بیٹھ کے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سارٹ آؤٹ ہوئی ہیں. بہت عرصے بعد جو آپ فرما رہے تھے میں آئی ہوں،
تو 4 महीने हमारी हुकूमत नहीं थी, तो मैं अपनी हुकूमत के बगैर थे मुंह चुक के फिरती, तो तुसी बड़ी मेरी गल सुननी सी। दसो जी, हुक्म करो। मैम से बात कर लो, उनसे पूछ लो, फिर आपसे बात करें। जी DTL से आ रही है, जा रही है, ये सिलसिला रहा, ये नेशनल की बात कर रहे हैं। 5 MS तब्दील हो चुके हैं ये, और 5 MS आप पिछले देखे, उनमें कई जो है वो मिस हैंडलिंग हुई है, क्या उसकी कोई इंक्वायरी हुई? जी अभी करने मैं ये बात कर लूँ। आपकी बस मेरी कंप्लीट है। अब जो MS हैं इनको पार्लियामेंटेरियंस आपके PTI के वो प्रेशराइज करते रहते हैं, अपने काम लेते रहते हैं और इनको तंग करते हैं। एक दूसरी बात यह है कि यहाँ का जो इमरजेंसी वार्ड के डायरेक्टर है वो 12 साल से एक ही बंदा है, और कल जो है वो एक हुआ है एक इंसिडेंट कि यहाँ पर वो लिफ्ट गिर गई है, और उसमें जो है वो ट्रामा पेशेंट था, उसका दिमाग का मसला था, वो जो गिर गया है तो क्या बनेगा? अच्छा मेरा ख्याल है जी, जहाँ तक ताल्लुक है, देखें MS साहब को लगाया है और बाकायदा एक प्रॉपर सिलेक्शन प्रोसेस से लगाया है। और ये भी मैं बता दूं, जो मर्जी कोई कहता रहे, मैं तो उनके पीछे खड़ी हूँ, और इसके बारे में तो कोई शक नहीं होना चाहिए। जहाँ तक अच्छा अच्छा, अब अगली बात, एक सेकंड मेरा ख्याल है, वैसे भी आप बात सुनिए, ये जेब नहीं देता कि आप लोग एक बात को बार बार, बात सुन ली मैंने आपकी। दूसरी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, दवाइयों का आपने जिक्र किया, मैंने बताया आपको कि हमने ऑलरेडी 52 करोड़ रुपया जो है ऑलरेडी सैंक्शन इसी बात पे किया कि दवाइयों की कोई कमी ना हो। हमने हर तरीके से कोशिश की कि जो ये दवाइयों की किल्लत आर्टिफिशियली प्रोड्यूस होती है, ये मैं आपको बता दूं, ये आर्टिफिशियली किल्लत प्रोड्यूस की जाती है ताकि लोकल परचेज में से 2 नंबरी करके, और अभी मेरी खबर के मुताबिक 5 करोड़ के ग्लव्स खरीदे गए लोकल परचेज में से। हमने इंक्वायरी इस पर मार्क कर दी है। इंशाल्लाह जिन लोगों ने इस तरह के गलत हरकतें की हैं उनके खिलाफ प्रॉपर एक्शन होगा, हम उनको छोड़ेंगे नहीं। आपको पता है कि हमने ऑलरेडी प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस जो है फरवरी में शुरू किया था, सिर्फ इसलिए कि वो जो 4-5 महीने इनको मिलते हैं और दवाइयां नहीं आती हैं, इस दौरानिया में जो मिस यूज होती है लोकल परचेज के पैसे, वो हम आइंदा न होने दें। जी बताइए। आपने जब भी इलेक्शन लड़ा जी बड़ी मेहनत से लड़ा, अपने हल्के के लोगों के साथ, आज भी आपका ताल्लुक है, उन लोगों ने आपको मैंडेट दिया, उस मैंडेट को खत्म करने के लिए आप भी मायूस क्यों हैं? और आप एक, ठीक है आपके कायद हैं, लेकिन मायूस इस हवाले से मायूस है ना कि आप कह रहे हैं कि 4 महीने पता नहीं कितना वक्त है हमारे पास, हम सब चले जाएंगे, असेंबलियां टूट जाएंगी, तो आप नहीं देखिए, हमने आपको जो मैंडेट दिया, देखिए मेरा ख्याल है सबसे इम्पोर्टेंट, देखिए मेरी दूसरा सवाल ये है, क्या हम ये तवक्को रखते हैं कि वज़ीर आला पंजाब इस खित्ते में भी आएंगे, और ये इतने बड़े जो मंसूबे आपने बताए हैं, तो एक मंसूबा उनके हाथों से भी छूटा होगा? जी इंशाल्लाह। देखिए सबसे बड़ी बात है कि एक मिनट गंगाराम अस्पताल का मंसूबा उन्होंने इफ्तिताह किया, मैं आपकी बता, अब यहाँ आपका जो मुकम्मल होने लगा है उसके लिए भी वो तशरीफ लाएंगे। अहम बात, मैं मायूस बिल्कुल नहीं हुई, मेरे चेयरमैन ने पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात हम किसी तरह ठीक करें। आज से 7 महीने पहले या 8 महीने पहले जब तब्दीली आई, हमारे से मैंडेट लिया गया, और जिस तरह लिया गया सबको खबर है इस बात की, तो एक ही बात हुई कि उन्होंने कहा कि जी हम महंगाई खत्म करने के लिए आए। महंगाई तो उन्होंने खत्म नहीं की, केस अपने खत्म कर दिए। आपको पता है माशाल्लाह सब जो हैं वो नैब से फारिग हो गए, बाकी जो करप्शन वाले हैं केस वो भी सारे फारिग हो रहे हैं, वो असल में अपने केसेस फरागत के लिए आए थे। दूसरी बात उन्होंने ये किया कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो कि तकरीबन 1 करोड़ बनते हैं, जो आपको रिमिटेंसेस भी भेजते हैं, जो पाकिस्तान के बारे में दुआएं करते हैं और उनको तकलीफ होती है पाकिस्तान के लिए, उनके लिए उन्होंने वोटिंग राइट जो है वो खत्म कर दिया। 2 काम किए उन्होंने। और जहां तक महंगाई का ताल्लुक है, मुझे तो बड़ा अफसोस होता है, साड़ी वारी तो 10.5 रुपए बद दे साड़ी मत मार देते, सो रौला पाप आगे 250 रुपए का पेट्रोल होया हुआ, आपकी 230 रुपए का वो हुआ डॉलर, 260 का बाजारों नहीं मिलता। गो एंड ट्राई इट, यू विल नॉट गेट इट। आपका तेल की कीमत के अलावा आपकी गैस, आपकी इलेक्ट्रिसिटी, गैस तो खैर है ही नहीं, गैस इज नॉट अवेलेबल और ना अवेलेबल होगी। बिजली के बिल उन्होंने बढ़ा दिए, हर तरफ महंगाई हो गई, कोई बंदा बात नहीं कर रहा। हमारी हुकूमत ने पूरी कोशिश की थी कि गुर्बत की सतह से किसी तरह लोगों को ऊपर लाने के लिए पहला कदम जो उठाया था वो ये इसका हेल्थ कार्ड का उठाया था। गरीब आदमी अगर बीमार हो जाए और पैसे खर्च करने पड़े
तो उस बेचारे के पास तो कुछ होता ही नहीं था, घर का वो बेचता था। हमने इंश्योर किया, वो कोशिश करे ने हेल्थ कार्ड भी खत्म कर दे। और आपने वो वीडियो वो उसकी सुनी होगी ना, मैडम मरियम की, जो बहुत हमदर्द है पाकिस्तान की, आजकल इटली में हमदर्दी का इजहार फरमा रही हैं। उन्होंने ये बताया कि आपने ऑडियो लीक सुनी, उन्होंने कहा जी ना कोई सवाए कार्ड आंदे और कुछ नहीं है तो फारे करो, कार्ड खत्म कर दो। इंपॉर्टेंट ये देखे, हम जो भी खड़े हुए हैं यहाँ, अगर आप और मैं मिल के काम नहीं करेंगे, इस पाकिस्तान में कभी बेहतरी नहीं आएगी। मेरा ख्याल है जी, जहां तक DHQ, एक सेकेंड, जहां तक DHQ, एक सेकेंड, DHQ हॉस्पिटल का जो काम है ना, DHQ हॉस्पिटल उन्होंने इनकम्प्लीट छोड़ा, मैंने उसको कंप्लीट किया। इस वक्त ऑप्थेल्मोलॉजी की इंस्टीट्यूट एंड इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड डिसऑर्डर्स वहां शुरू होने लगा है। हम इंश्योर करने लगे हैं कि क्वालिटी की ऑप्थेल्मोलॉजी सर्विसेज, और साथ आपको जो ब्लड डिसऑर्डर्स हैं, क्योंकि साउथ के अंदर थैलेसीमिया बहुत बड़ा मसला है, हम इंशाल्लाह वहां एक बहुत बड़ा ब्लड डिसऑर्डर्स का सेंटर बना रहे हैं, और वो मुकम्मल अगले तैयार है। ऑप्थेल्मोलॉजी दिसंबर में, एक सेकेंड, एक मिनट, आप मैं एक बता, ऑप्थेल्मोलॉजी दिसंबर में, ये पीछे खड़े हैं मेरे, ही इज गोइंग टू लुक आफ्टर इट। और अपना जो उसका है ब्लड डिजीज ऑर्डर, वो फरवरी के महीने में। अब आ गया, एक मिनट, हमने ये अस्पताल ही सिर्फ मुकम्मल की, हमने गुजरांवाला अस्पताल मुकम्मल कर दिया, हमने साहिवाल वाला अस्पताल मुकम्मल कर दिया है, हमने रावलपिंडी वाला इंस्टीट्यूट मुकम्मल की है। 550 नहीं, मेरा ख्याल है वैसे तो बड़ा ही अफसोस है, एक मिनट, एक मिनट, बड़ा ही अफसोस है कि आप ये बात, मैंने आपको गिनवाए अस्पताल जो हमने मुकम्मल किए। अभी इनको कहा है, आप जी सॉरी टू से आपके खुद उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर ये मान चुके हैं कि मुआजिर ने गलत किए थे शौकत तरीन साहब। तो ये महंगाई अगर हो रही है तो ये आपकी की हुए मुआहदों की वजह से हो रही है। बेटा, हमने महंगाई की, वो तो महंगाई, एक सेकंड, हमने महंगाई की, वो तो एक मिनट, आप उन्होंने कहा महंगाई, हमने महंगाई की जिस पे आपको इतराज है, वो तो महंगाई खत्म करने आए थे, हम ये थोड़ी कह रहे हैं। हमने कहा वो तो क्लेम ये करने आए थे कि हम महंगाई खत्म कर देंगे। मैं तो आपसे ये सवाल पूछा, महंगाई खत्म होगी? तो मैंने ये कहा उन्होंने अपने केस खत्म किए हैं, महंगाई नहीं खत्म। ओके जी, जी बताइए। बेटा, मैं तो उनके पीछे पीछे फिरती रही, बाकायदा उनको खुद फोन करती थी, और मैं कहती थी आपका इलाज कहाँ तक पहुंचा है, अगर आप हमें रिपोर्टें भेज दें तो हम आपकी ये जो बेल है इसमें तौसीक कर दें। उन्होंने ही मेरी बात नहीं मानी, उन्होंने फरवरी तक के महीने तक तो हमारी डॉक्टर से बात होती रही, उन्होंने कहा जी इनकी कैथेटराइजेशन होनी है, कार्डियक कैथेटराइजेशन। अब मकसद ये है कि वापस आएंगे तो इंशाल्लाह जरूर चेकअप करेंगे, ठीक है ना। आपने कहा इमरान खान कह रहे हैं कि हम असम्बलियां तहलील कर रहे हैं, तो क्या वज़ीर आला पंजाब ने उनकी मर्जी का तो FIR तक नहीं काटी, तो क्या वो असम्बलियां तहलील करेंगे? दूसरा जो मुनीर सलाई का बयान है कि तहरीक इंसाफ के लिए जो बाजवा ने काम किया वो किसी जो है वो और बंदे ने काम नहीं किया, तो आज उनको ये बुरा भरा, मेरा ख्याल है मुनीर सलाई के बयान पे क्या कहेंगे? देखिए, मेरा ख्याल है दो बातें, देखिए हर इंसान, मेरा ख्याल है सबसे बड़ी बात है, पहले तो आप देख लीजिए कि इमरान खान किसी की बात सुनते हैं, अगर कोई नवी गल हो गई है जो मैनू आज पता नहीं चलिया, उन्होंने अपनी मर्जी की गल करनी है, जब भी बात करेंगे। एक नंबर दो, आपको मैं ये बताती चली जाऊं, देखिए हर इंसान का अपना एक ओपिनियन और अपने ताल्लुकात होते हैं। मुनीर सलाई साहब के होंगे ताल्लुकात, उन्होंने बात की होगी जरूर, उसका ये मतलब नहीं है कि वो इमरान खान की बात रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। इमरान खान ने अपना वाज़ेह तौर पे सब कुछ बता दिया, हमने ये बिल्कुल कैटेगोरिकली बताया है कि आर्मी की इंटरफेरेंस थी,
आर्मी कहती है कि जी अब मैं इंटरफेयर नहीं करूंगी, बहुत अच्छी बात है। वजह यह है कि आर्मी इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए पॉलिटिकली, और इंशाल्लाह जिस तरह तसल्ली दी गई है कि आइंदा इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी, इससे अच्छी बात ही और नहीं हो सकती। अब आ गया नहीं जी, एक सेकंड, अब आ गया मसला कि जी एक सवाल इन्होंने पूछा था कि जी आपके वो नाराज हो जाएंगे सारे। असल में कौम जो है ना वो बड़ी माशाल्लाह समझदार हो गई है। इमरान खान ने 8 सीटों से इलेक्शन लड़ी, 7 सीटों पे जीता। जो वोट डालने आए उन सारों को पता था कि इमरान खान ने असेंबली में नहीं जाना, उसके बावजूद उन्होंने वोट क्यों दी? उन्होंने वोट इसलिए दी कि कोई और तरीका नहीं था बताने का सवाए इस तरीके से कि हम इमरान खान के मौक़िफ़ के साथ खड़े। एक बात। नंबर 2, आपकी 20 इलेक्शनें हुई, हम उस वक्त हुकूमत में नहीं थे। उन 20 इलेक्शनों के अंदर हमने 15 सीटें, हमारी 16वीं भी हमारी थी, जे कोई इंटरफेरेंस ना होती तो 16वीं भी साड़ी सी। आप वो सारी हुकूमत, सारे हर किस्म के अदारे हमारे मुखालिफ काम कर रहे थे, उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हमने 15 सीटें जीती। मैं आपको ये बताती चली जाऊं। देखो बेटा एक बात बताऊं, बात ये है, ये तो आप लोगों पे डिपेंडेंट है, हमारे पे भी डिपेंडेंट। हम या तो पाकिस्तान में महकूमी के साथ रहें, बड़ी अच्छी बात है, ये आपकी डिसीजन है। मैं इस उम्र में भी महकूमी में बिलीव नहीं करती, तो मैं इसलिए सड़क पे आके खड़ी हो जाती हूँ, एहतजाज भी करती हूँ, एतराज़ भी करती हूँ, हर जगह जाती भी हूँ। वजह यह है कि मैं अपनी औलाद जो है ऐसे मुल्क में कभी ना छोड़ना चाहूँ, मेरी अगली नस्ल जो है, जहाँ महकूमी का ये आलम हो कि आप बात ना कर सकें। आप मुझे ये बताइए, सारी बातें अपनी जगह, आजम स्वाति के साथ जो हुआ, क्या कोई बंदा इसको जस्टिफाई कर सकता है? जो उसकी फैमिली के साथ हुआ, जो वीडियो दिखाई गई, आप सारे यहां बैठे हुए, हम औरतें, हम मर्द, कोई बंदा बर्दाश्त करता? क्या डाला उसने, कर क्या रहे हैं उसके साथ? अरशद शरीफ तो आपका अपना था, हमारा तो नहीं था, आपका था। अरशद शरीफ ने क्या बोला? कुछ भी नहीं बोला। जो बोला उसने सच बोला, वो सच बोलने के लिए कत्ल कर दिया। इमरान खान क्या कह रहे हैं? इमरान खान एक हकीकी आज़ादी की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं हमें ज़हनी आज़ाद होना चाहिए। हमारी किसी मुल्क के साथ कोई लड़ाई नहीं है, ना अमेरिका के साथ लड़ाई है। हमारी तो ये बात है, हम बराबर के स्टेटस पे बात करेंगे। एक मिनट, अब मकसद ये है, इस वक्त जो हालात डेवलप हुए हैं वो आपके सामने है। हकीकी आज़ादी जो है, या तो हम चाहेंगे या आप नहीं चाहेंगे। जेड़े चाहते हो साढ़े नाल खड़े हो जाएंगे, नहीं चाहेंगे दूसरे पास खड़े हो जाएंगे। आप पूछ चुके जी। देखिए जी, जहाँ तक मेरे लिए मरीज बड़ा अहम होता है, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था कि नवाज शरीफ जब बतौर मरीज़ आए थे, मैंने बतौर डॉक्टर आई इंश्योर्ड, और मुझे जो भी रिपोर्टें दी गई थी उसके मुताबिक उस वक्त उनको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बरपरा था। ठीक है, अकॉर्डिंग वेरीफाई हुआ था, और उस पर मैं अकेली नहीं थी, पूरा मैंने थोड़ी जाके वेरीफाई करना, मैं तो गायनेकोलॉजिस्ट थी, मैं देंदी ओपिनियन तो कहते जी गायनी आलन दे देता है। लेकिन इंपॉर्टेंट देखें, बात तो मुकम्मल करने दिया करें। अब मकसद ये है कि इस वक्त नवाज शरीफ साहब जब गए हैं तो वो अपनी दिल की तकलीफ का बहाना बना के गए। उन्होंने कहा जी मेरे दिल में बड़ी तकलीफ है, मेरी कार्डियक कैथेटराइजेशन, मैंने उनको ऑफर किया खुद जाके, मैंने कहा आपकी कार्डियक कैथेटराइजेशन यहाँ करा देते हैं, आप अपने मॉलिज को बुलाना चाहते हैं उसको यहाँ बुला लेते। उन्होंने कहा नहीं, मैं एक्चुअली अपने मॉलिज से जाके करवाऊंगा। अब मसला है कि 2.25 साल कराई ना कराई, तबीयत उन्हों की ठीक है माशाल्लाह, आजकल सैर करने वास्ते यूरोप गए ने, ते उम्मीद है सैर करते करते किसी वक्त पाकिस्तान तशरीफ ले आने। और आखिरी देखिए जी, आपका एक सेकेंड, एक मिनट, मेरा ख्याल जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज,
ਇੱਕ ਤਾਂ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਬੜੀ ਡਿਸਪਲਿਨ ਲੋਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋग ਵੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਬੰਦਾ इंपॉर्टेंट सेहत कार्ड एक कामयाब प्रोग्राम है। 28 लाख बंदों ने अगर फैमिली ने इस्तेमाल किया है, हमने जो फीडबैक ली है जिसकी बाकायदा थर्ड पार्टी एवेल्युएशन होती है, 97% of people who availed the card showed satisfaction and were happy for the use of the card, number one. Number two, जो सरकार के अस्पताल हैं उनके अंदर भी बाकायदा, अब हमने क्योंकि इंट्रोड्यूस और इम्पैनलिंग बाद में की थी, सारे अस्पतालों के अंदर ये इस्तेमाल होगा। आपके जो बाहर के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के साथ अस्पताल हैं, पहले वो मरीजों को इसलिए दाखिल नहीं करते थे कि जो खर्चा होता था वो भी उनके पास नहीं होता था देने के लिए। कार्ड की देने की वजह से इस वक्त आपके प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के साथ जितने अस्पताल हैं वो भरे हुए हैं। अगर 28 लाख बंदों ने इलाज करवाया है तो कहीं तो जाके कराया होगा ना। बाय इम्पैनलिंग प्राइवेट हॉस्पिटल्स हमने 42,000 बेड्स ऐड किए, तो इंशाल्लाह ये आप बिल्कुल फिक्र ना करें, ये कामयाब है तो लिखा वो या ना कहो। थैंक यू वेरी मच। बस आई हैव टू गो। डेंगू की आवाज करते हैं, मुल्तान में डेंगू दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। क्या मुल्तान में डेंगू की बात कर रहा हूँ, बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ पे कोई ये सवाल अख्तर मलिक से करना है, ठीक है। बलदियाती इलेक्शन मैडम